Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Today we'll be starting with lesson number 15, life processes in living organism. तो अब life processes का मतलब क्या होता है? All the processes which are important and they are required for sustaining your life on earth. उसको हम क्या बोलते हैं? Life processes. Now these processes include all your respiratory system, digestive system, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन. ओके, तो ये सारे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वी विल बी स्टडिंग इन दिस लेसन्स. ओके, so there are some questions which are given in your textbook which are from your previous standards. So the first question which is given is, how do the digestive system and the respiratory system work? Now the answer which is given is, each part of your digestive system helps to move the food and liquid through tract, break food and liquid into smaller parts, or both. तो suppose your digestive system includes mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, right? तो यहाँ पे जो भी organ involved है, what they are doing, they are helping you to pass the food from mouth to small intestine, large intestine, anus, and also they are breaking down the food into smaller parts ताकि उसको आप easily digest कर पाओ, right? तो digestive system का ये रोल होता है. And once food are broken into small enough parts, your body can absorb and move the nutrients to where they are needed. जब food particles small particles में break down हो जाएंगे तो what will happen, जो भी nutrient वो food से आपको मिलता है it will be absorbed into your blood, and ये जो न्यूट्रिएंट है wherever which ever organ your body needs that nutrient वहाँ तक पहुँचेगा and your body will function normally. Okay, so how does your respiratory system work? The lungs and respiratory system allow oxygen in the air to be taken into the body, right? हम क्या कर रहे हैं, the oxygen which is available in the environment, we are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. इसको ही हम respiration process बोलते हैं, right? तो ये किसके हेल्प से होता है? It is with the help of lungs and all the respiratory system which are involved, such as your nasal cavity, your nostrils, oral cavity, larynx, pharynx, trachea, bronchi, bronchus, diaphragm. These are all the organs which are involved in respiratory system. Okay, so while also letting the body get rid of carbon dioxide in the air, breathe out, right? इसमें क्या लिखा हुआ है कि we are taking in oxygen and we are giving out carbon dioxide. So when you breathe in, the diaphragm moves upward. मतलब जब आप breathe in करोगे, ऑक्सीजन को लोगे, तो what will happen, the diaphragm which is present below the lungs वो ऊपर की तरफ, it will go downward, नीचे की तरफ जाएगा, and the ribs muscle जो है they will pull the ribs upward and outward. These are the ribs which are present. Okay, तो जब आप ऑक्सीजन लोगे तो the diaphragm moves downward and सारे ribs जो है it will be taken upward and downward when you breathe in and breathe out. Okay, so this is how your respiratory system works, right? Now the topic which is given in your textbook, the first topic is transportation. Now by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches other. ठीक है, सपोज जो न्यूट्रिएंट है वो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है एंड ये स्टार्ट हो रहा है आपके ब्रेन से, सपोज. हाँ, तो क्या होगा, अब वो ब्रेन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड का एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जाना ज़रूरी है, तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट. इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हम ह्यूमन बीइंग्स में तो समझ रहा है कैसे होगा, बट प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सो वी विल बी स्टडिंग दैट थ्रू दिस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. नाउ व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? डू दिस प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू? सो दिस plants जो है अब उनको they don't have mouth to eat, so how they are absorbing the nutrient from the surrounding? So this is the question which everyone of us have in our mind. Then हमारा body जो है उसको vitamins की ज़रूरत है, उसको minerals चाहिए, तो do plants need those minerals also? So when we eat fruits and vegetable,
बिकॉज दे कंटेन मैनी मिनरल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, है ना। हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? बिकॉज इट कंटेन मिनरल्स एंड आवर बॉडी रिक्वायर्स मिनरल्स, ठीक है। एंड डू प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू? सो प्लांट्स ऑल्सो नीड मिनरल्स टू सर्वाइव, ओके। एंड सो यू माइट हैव गॉट द क्वेश्चन कि प्लांट्स जो है वो मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट्स गेट दोज मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल विच द प्लांट्स नीड, ठीक है। तो उनको सॉइल से मिलता है एंड वी गेट दोज मिनरल फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। So from where do the plants get inorganic substances other than carbon dioxide and oxygen? Because carbon dioxide तो हम लोग plants को provide कर देते हैं and oxygen they give us, right? तो जो दूसरे inorganic substances हैं वो plants को कहाँ से मिल रहे हैं? तो plant can absorb the inorganic nutrients and water through their root system. उनके रूट सिस्टम से उनको सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बिकॉज वी आर एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। देन और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ओके। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलॉन्ग विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस द एनर्जी दैट अलाउज द प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अलॉन्ग विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीनों चीज़ें उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्लांट्स एंड जिसके वजह से प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं, ओके। नाउ मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट मूव, है ना। प्लांट्स को माउथ भी नहीं है, लेग भी नहीं है, तो बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना खाना खा लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। देर आर मैनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी, ओके। दे नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल्स। उनको लेस एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज एनिमल्स को अपना खाना ढूंढने के लिए दूसरे एनिमल को मारना पड़ेगा, राइट। मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी अपना खाना खाने के लिए, बट प्लांट्स को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड देयर फूड और फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। वो मूव ही नहीं कर सकते, तो उनकी एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट ही नहीं होती, इसलिए प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ओके। देन प्लांट नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम एक्सेट्रा। प्लांट्स को ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं एंड ये प्लांट्स को उनके रूट सिस्टम से मिल जाता है। एंड इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट फर्टिलाइजर्स, जिसको हम खाद बोलते हैं, तो उनके अंदर भी ये सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स को हम लोग इनडायरेक्टली दे देते हैं। एंड इफ़ यू नो अबाउट कि जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है, जैसे कि फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, इट कंटेन्स वेरी मच अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा ये सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। इफ़ यू पुट दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीव्स इन दी सॉइल, ठीक है, जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा होगा वो सॉइल में अगर आप ये वेस्ट डाल दोगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, वो पील से, जो हमारे लिए जो वेस्ट है वो प्लांट वो पील से दे विल टेक ऑल दिस न्यूट्रिएंट एंड दे विल ग्रो वेरी मच फास्ट, ओके। सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंसेस। सॉइल के अंदर ये सारे मिनरल्स एंड ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम, ठीक है। रूट्स क्या करते हैं, ये सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल ट्रांसपोर्ट देम टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लीव्स एंड देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म दिस फंक्शन। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, वैसे ही प्लांट्स के पास भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू होता है ताकि वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, ओके। सो द जाइलम कंडक्ट द वाटर वेर एज द फ्लोएम कंडक्ट द फूड, ठीक है। इसका मतलब समझो प्लांट के पास दो वेटर्स होते हैं, एक होता है जाइलम एंड एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो अब ये जो प्लांट है, रूट्स को तो समझो आसानी से खाना मिल जा रहा है,
पर ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इनको भी तो खाने की ज़रूरत है, राइट? तो इनके पास दो वेटर हैं, एक है जाइलम एंड एक है फ्लोएम। तो जब भी टॉप मोस्ट पार्ट को ऐसा लगेगा कि उसको पानी की ज़रूरत है तो उसको पानी लाके कौन देगा? जाइलम। दिस आर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है? तो जब प्लांट उसका टॉप मोस्ट पार्ट बोलेगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है तो कौन सा वेटर जाएगा? जाइलम जाएगा, ठीक है? एंड जब उस टॉप मोस्ट पार्ट बोलेगा कि मुझे खाने की ज़रूरत है तो कौन सा वेटर जाएगा? तब फ्लोएम जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट के पास दो वेटर्स होते हैं, एक खाना पहुंचाता है एंड दूसरा पानी पहुंचाता है। तो खाना पहुंचाने वाला इज़ फ्लोएम एंड पानी पहुंचाने वाला इज़ जाइलम, एंड इसको हम क्या बोलते हैं दोनों को? दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज़। Okay, now all parts of the plants are connected with this conducting tissues. See, xylem and phloem का microscopic structure दिया हुआ है, कैसे दिखता है वो? This is phloem and this is xylem, ठीक है? Now transportation of water in plants कैसे होगा? As I said, जब plants को पानी चाहिए होता है तो कौन आएगा? xylem आएगा। See, तो अब यहाँ पे एक दिया हुआ है root pressure, then transpirational pool. Okay, these two are given, we will study those. Root pressure क्या होता है and how you can measure this root pressure? See, we will study this through an example. Take a small plant like balsam or tuberose with its root intact. रूट्स कैसे होने चाहिए? इंटैक्ट, मतलब टाइट होने चाहिए एंड अंदर की तरफ होने चाहिए। वॉश एंड क्लीन इट्स रूट, वॉश करेंगे एंड क्लीन करेंगे एज शोन इन द फिगर। Now keep it in the water containing a stain like saffronin or eosin. अब ये जो आपको पानी दिख रहा है वहाँ पे लिखा है eosin solution, तो saffronin और eosin solution आप जब डालोगे पानी में, the solution will turn red in color, क्योंकि saffronin का जो कलर होता है स्टेन का वो रेड होता है, ठीक है? तो पानी भी कैसा होगा? रेड होगा। Okay, now absorb the stem and the veins of the leaves after 2 to 3 hours. ठीक है? वेन्स कैसे हो जाएंगे? पहले वेन्स ग्रीन होंगे, बट बिकॉज आपने पानी के अंदर सेफ्रानिन सोल्यूशन डाला है जो रेड कलर का होता है, तो 2 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट का लीव्स है वो कैसे हो जाएंगे? दे विल ऑल्सो टर्न रेड। जो प्लांट का लीव्स एंड वेन्स होगा दे विल टर्न रेड। ओके, बाय। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जाइलम अपना काम कर रहा है। जाइलम इज़ ट्रांसपोर्टिंग दी वाटर, एंड अगर वाटर का कलर रेड होगा तो जो उसके वेन्स है वो भी रेड कलर में आ जाएंगे। ओके, सो हियर यू कैन से रूट प्रेशर यहाँ पे एक डेवलप होता है प्लांट्स के अंदर। नाउ टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट एंड एब्जॉर्ब द स्टेन जाइलम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपको स्टेम दिख रहा है वेन्स के नीचे का, इसको हम कट करेंगे एंड उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। तो ये रूट्स दिख रहा है आपको, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड दोज रूट सेल्स दे आर in contact with the water, right? They are in contact with the water and minerals which are present in the soil. Water and minerals enter the cells on the root surface due to differences in concentration. अब water और mineral cells के अंदर कैसे जाता है? Because they have the differences in concentration. वाटर का concentration हमेशा ज़्यादा होता है मिनरल से, and that is the reason वो क्या करते हैं? They enter the cells on the root surface. Okay, as a result the cells become turgid. turgid मतलब वो hard हो जाते हैं cells, and this turgid cells exert pressure on the adjacent cells. turgid मतलब अब क्योंकि cells hard है तो they will exert pressure, है ना? तो क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उनके बाजू वाले सेल्स के ऊपर, एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। ओके, अब सेल्स क्या हो गए? टर्जिड मतलब हार्ड हो गए। वाई? बिकॉज वाटर और मिनरल जो है वो कहाँ पे एंटर करेंगे? सेल्स पे, रूट सरफेस के, ठीक है? बिकॉज इसके वजह से सेल्स हैवी हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ओके, एंड यही एक रूट प्रेशर डेवलप करवाएगा प्लांट्स के अंदर। ओके, सो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर water and mineral reach the xylem of the roots, and to reduce these differences in concentration they are continuously pushed forward. ठीक है? अब बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर और मिनरल जो है वो जाइलम तक पहुँच रहा है,
तो दे आर रिड्यूसिंग द डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाता है। एंड हमने देखा सेल्स हार्ड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वाटर और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम हो रहा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, जिसके वजह से रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है। पर यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि पानी कम हो गया, बिकॉज जाइलम इज़ ट्रांसपोर्टिंग इट टू द अपर एंड। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट अ वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड। वाटर कॉलम कैसे बन रहा है, बिकॉज जाइलम इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर विच इज़ कंटिन्यूसली पुश्ड अहेड एंड दिस प्रेशर इज सफिशिएंट to lift the water up in the shrubs, small plants and small trees। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वाटर रूट प्रेशर डेवलप नहीं होगा एंड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ पुश करते रहेंगे हम लोग थ्रू जाइलम। ओके, सी यहाँ पे दिया हुआ है लीफ एपिडर्मिस, क्यूटिकल, लीफ ग्राउंड टिश्यू, लीफ एपिडर्मिस, देन सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर, सब कुछ प्रेजेंट है। एंड दिस इज़ द जाइलम विच यू कैन सी, H2O लिखा हुआ है, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू द अपर पार्ट ऑफ द लीव्स। ओके, याद रखो कि जाइलम जो है वो प्लांट्स को पानी देता है एंड फ्लोएम जो है वो प्लांट्स को खाना पहुंचाता है। एंड रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, जब वाटर एंड मिनरल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो सेल्स हार्ड बन जाते हैं एंड रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। एंड इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाइलम को लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड अगर जाइलम आ गया तो जाइलम उसको आगे की तरफ पुश करेगा वाटर को, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा एंड इसके वजह से रूट प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल। नाउ plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves। if you have observed, हम plants को root में पानी देते हैं, but if you have observed, कभी कभी जो plants का टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसके वहाँ पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स जो है वो वाटर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स। ठीक है, सो 2 cells called guard cells are present around the stomata and these cells control the opening and closing of stomata। अब ये जो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो गार्ड सेल का काम क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन गार्ड्स इन ज्वेलरी शॉप या कोई भी बड़ी शॉप होती है, वहाँ पे बंदूक लेके 2 गार्ड्स खड़े होते हैं डोर के ऊपर, स्टार्टिंग में डोर में। तो उनका काम क्या होता है, अगर कोई भी आ रहा है तो उनको चेक करना एंड डोर को ओपन करना एंड क्लोज करना। तो सेम वे ट्रांसपिरेशनल पुल में यू कैन रिमेंबर कि 2 गार्ड सेल है जिनका काम क्या है, स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करना। ऑलवेज रिमेंबर गार्ड सेल का काम क्या है, गार्ड सेल का काम इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमाटा। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू दिस स्टोमाटा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कैसा होगा, स्टोमाटा के थ्रू होगा एंड वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वाटर कैसे रिलीज होता है प्लांट से, प्लांट के लीव से, टॉप मोस्ट पार्ट से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके, एंड द रोल ऑफ द गार्ड सेल कैन बी आस्क्ड फॉर 1 marks। तो ऑलवेज रिमेंबर गार्ड का काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, now as a result water level in the epidermal layer of the leaf decreases। अब बिकॉज इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स होते हैं टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट के, वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज वाटर लॉस हो रहा है वहाँ से, तो एपिडर्मल लेयर जो होता है लीव्स का, वहाँ पे डिक्रीज इन वाटर लेवल वी कैन ऑब्जर्व एंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द जाइलम सो एज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस्ट वाटर। ठीक है, अब वाटर का लॉस्ट होते जा रहा है थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वो कंपेंसेट करने के लिए, वहाँ पे वाटर की कमी ख़त्म करने के लिए जाइलम को क्या करेंगे हम लोग, जाइलम बीच में आएगा एंड इट विल ट्रांसपोर्ट दी वाटर। ठीक है, नाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प कर रहा है, सारे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे उनके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम
किसका होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का होता है, ठीक है। एंड रूट प्रेशर क्या करता है, वो परफॉर्म करता है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर अप ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम में ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम किसका होता है, इट इज़ द वर्क ऑफ द रूट प्रेशर। एंड ट्रांसपिरेशन का काम क्या है, सारे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना एंड सारे पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, रिमेंबर दिस। सी, ट्रांसपिरेशन में पहला क्या दिया है, वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। सेकेंड में क्या दिया है, वाटर ट्रैवल्स अप थ्रू द प्लांट। थर्ड में दिया हुआ है वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो है क्या होता है, वाटर लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। रिमेंबर दिस। हाँ, देखो पहले हमने प्लांट्स के रूट्स के अंदर पानी दिया, तो रूट्स ने पानी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगी, वाटर जो है वो ट्रैवल करेगा अपर पार्ट्स ऑफ द लीव्स में। उसके बाद में हमने देखा था कि प्लांट का जो टॉप मोस्ट लीव होता है, सबसे ऊपर वाला लीफ होता है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने मिलते हैं। तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वाटर लॉस्ट होता है प्लांट्स में से। अब ये लॉस्ट वाटर को कंपेंसेट करने के लिए जाइलम क्या करेगा, जाइलम विल कैरी द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। सी, दिस इज़ द ओक ट्री which releases about 1,51,000 liters of water into the air by the process of transpiration in 1 year, ठीक है। 1,51,000 liters of water ये लॉस करता है through the process of transpiration, okay। whereas this is the maize crop in an area of 1 acres, and 1 acres में it gives out about 11,400 to 15,100 liters of water per day, ठीक है। तो हमें भले ही दिखता नहीं है कि प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है, बट ये वाटर लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो प्लांट्स आर ऑल्सो गिविंग अस वाटर इन दिस फॉर्म, ठीक है। नाउ हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस। So the food produced in the leaves is transported to each cell in the plant body। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही जब जो भी फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट के लीव्स के अंदर, उसको हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। ओके, नाउ एक्सेस फूड एक्सेप्ट अमाइनो एसिड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड। कभी कभी हमारे घर में भी एक्स्ट्रा खाना बन जाता है ना, तो व्हाट वी डू, हम उसको फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं। वैसे प्लांट्स जब खाना बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा खाना बन जाता है, तो व्हाट दे डू, अमाइनो एसिड को छोड़ के बाकी जो भी खाना होगा उनका एक्सेस फूड, वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, दे विल स्टोर इन द रूट, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। ओके, रिमेंबर दिस। वो अपना खाना हमेशा रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, बिकॉज उन्होंने खाना कहाँ बनाया, अपने लीव्स के अंदर, एंड वो स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में, तो उन्होंने लोकेशन चेंज की, राइट। तो इसलिए ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। इट इज़ कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम, राइट। फ्लोएम का काम है ना खाना पहुंचाना, तो ये फ्लोएम क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी स्टोर कर सकता है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी खाना स्टोर कर सकता है इन द रूट, फ्रूट एंड सीड्स। ओके, नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल इज़ नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिल रही है, so they get this energy from ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. Okay, so whenever food materials like sucrose is transported towards a part of plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. Now sucrose is a type of sugar. तो जब भी सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी पार्ट में प्लांट्स के, तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे फूड ज़्यादा हो गया, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। जब यहाँ पे वाटर की कमी हो रही है तो क्या होगा, वाटर सेल्स के अंदर एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप रेजिन्स लेना, मतलब किशमिश लेना,
उसको भिगोना थोड़े टाइम के लिए, आप क्या देखोगे, वो थोड़ा सा फूल जाएगा जब आप उसको पानी में सोक करके रखोगे। दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। आपने मैजिक बॉल भी सुना होगा, छोटे छोटे से होते हैं, जब आप उसको पानी में रखते हो तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो उसी तरह से वाटर भी क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट, राइट, क्योंकि उन्होंने सुक्रोज भी ले लिया है अपने सेल्स के अंदर, अब वाटर भी एंटर कर रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो उनका सेलुलर कंटेंट जो है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके वजह से सेल वॉल पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फूड कहाँ पे पुश हो जाएगा, इनटू द नेबरिंग सेल्स वेयर द प्रेशर इज़ लो। सपोज़ ये एक सेल है एंड ये उनका बाजू का सेल है। अब ये सेल के अंदर सुक्रोज आ गया है एंड साथ में वाटर भी आ गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से सुक्रोज तो गया हुआ है ऑलरेडी ये सेल के अंदर, पानी भी चला गया। अभी यहाँ पे इनके सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे, जो उनका एक्स्ट्रा खाना है वो अपने बाजू वाले को दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने फूड को बाजू वाले को ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहाँ पे प्रेशर कम है। ये प्रोसेस क्या करता है, हेल्प करता है फ्लोएम को टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज़ पर द नीड ऑफ द प्लांट। मतलब अगर प्लांट को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है तो ये क्या करेंगे, अपने बाजू वाले सेल को दे देंगे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, so during flowering season the sugar stored in the root or stem is transported towards the floral buds to make them open and blossom। तो जब फ्लावरिंग सीजन होता है कोई भी प्लांट का, तो वहाँ पे जो शुगर स्टोर्ड होता है उनके रूट्स या स्टेम के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोरल बर्ड्स के यहाँ पे, मतलब जहाँ पे फ्लावर ओपन होने वाला है या ब्लॉसम करने वाला है, ठीक है। So I hope you are clear with this much process what I have thought. We will study about excretion also. Now many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia etc. are produced in living organism। ठीक है, ये सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। एंड इफ दिस सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट इन द बॉडी और आर रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग, इट कैन लीड टू सीरियस हार्म और इवन डेथ। ठीक है, अगर ये हमारे बॉडी से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाया तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सच हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीशन प्रोसेस इज डिफरेंट। Removal of the waste or harmful substances from the body is called as excretion, right? We all are aware of this. Harmful or nitrogenous waste excrete karna from the body is called as excretion process. In unicellular organism, waste materials are directly eliminated across the cell surface, whereas the process of excretion in multicellular organism is complex. मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, उनका वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है अक्रॉस द सेल सरफेस। ओके, नाउ रिटेंशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द बॉडी इज़ डेंजरस। अगर कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेज आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो इट इज़ डेंजरस फॉर यू, for your body। Okay, hence just as the process of excretion occurs in living organism, similarly proper disposal of the garbage produced in our locality and home is also necessary। जैसे हमारे बॉडी में अगर हमने अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस रखे तो इट इज़ डेंजरस। सेम वे जो हमारा एनवायरनमेंट है, इट इज़ ऑल्सो सफरिंग द सेम। अगर आप उसमें आप बहुत ज़्यादा अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस रखोगे तो इट विल बी डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो this will help you lead a healthy life and if your excretion process is good, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें आपके बॉडी के अंदर नहीं है, you will feel good। The same way the environment will also feel good and you will also lead a healthy life।
right? So just think about this. The excretion process and the environment का process is, I think so 50 to 60% is similar. अगर जैसे अगर हम अपने बॉडी के अंदर गंदगी नहीं रख सकते, वैसे हम एनवायरनमेंट में क्यों रखें? बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो helping us to live a healthy and sustainable life, right? So think about this. Now leaves of the plants fall off in a particular season. You might have observed this कि एक सीज़न आते ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सारे लीव्स गिर जाते हैं. What is the reason behind that? तो लीव्स जो है वो यूजुअली फॉल होते हैं ड्यूरिंग ऑटम सीजन. ऑटम जो है प्रिसीड करता है द एडवेंट ऑफ द विंटर विच इज़ अ ड्राई सीजन विथ फीवर वाटर सप्लाईज फॉर द प्लांट. अब ये लीव्स क्यों गिरते हैं? बिकॉज वहाँ पे जाइलम अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता विंटर सीजन में एंड वाटर की कमी होती है. ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न लीव्स फॉल ड्यूरिंग ऑटम सीजन. ओके, फ्लावर फ्रूट्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ये भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने उसको तोड़ा नहीं तो वो खुद से नीचे गिर जाते हैं. सो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, दिस आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट विच आर यूजफुल फॉर अस, बट फॉर प्लांट्स इट इज़ एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ओके, सो दे फॉल ऑफ ड्यू टू द एक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन कॉल्ड एज एप्साइसिक एसिड. तो प्लांट्स के अंदर ये फाइटो हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये प्लांट्स या the fruits and flowers fall off because of the abscisic acid which are present in the plants. Now excretion is simpler process in plants than in animals. Plants का excretion is simple. आपने रबर देखा होगा, गम देखा होगा. These are all the excretory product which are eliminated through plants. Okay, so there is no special organ or system for excretion in plants. जैसे उनको माउथ नहीं है, खाना बनाने के लिए हैंड्स नहीं है, फिर भी उनका खाना बनता है ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वैसे ही उनको कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फॉर एक्सक्रीशन. सी गैशियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लीफ सेल्स एंड द फ्लावर फ्रूट्स एंड द बार्क ऑफ द स्टेम. तो ये सारे समझ लो ये सारे पार्ट्स के अंदर प्लांट्स जो होते हैं अपना एक्सक्रीटरी या वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर करते हैं. आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ. तो ये जब स्टोर करेंगे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो पार्ट जो है वो प्लांट से अलग हो जाते हैं एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द प्लांट. एंड सम अदर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड बोन जाइलम इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स एंड गम्स. अब प्लांट्स के लिए ये सारे उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, बट हम ह्यूमन्स उसको एडवांटेज की तरह लेते हैं एंड दे आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस विथ nutrients. They are also helping us in building various furnitures, and this resin and gums are very useful in some industries also. Okay, so now some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil. तो जो आसपास का soil होता है वहाँ पे roots कुछ waste material they release. Okay, now human beings का excretion process we will start in the next lecture. I hope you have understood कि excretion process, then xylem water कैसे लेके जाता है plant तक, phloem water कैसे लेके जाता है plants तक. You have understood all these topics which are related to plants. Okay, so for today, thank you everyone.